Good morning. Dear student, last class we discussed about the procedure of root locus. Now we take one problem. So this is a university problem in winter 2014-17, summer 15. Okay. So this is very important problem for 15 marks, 14 marks, 10 marks. Okay. What is the problem? The open loop transfer function of control system is given by GSHS is equal to K divided by s plus 6 in the bracket s square plus 4s plus 13. Sketch the root locus and determine first point the breakaway point, second angle of departure from complex pole, third stability condition. Dear student, please write. आप एक कॉपी लीजिए और सबसे पहले प्रॉब्लम लिखिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GSHS इज इक्वल टू दिस. डियर स्टूडेंट, अभी हम इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया. इस तरह से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. वी सॉल्व एनी क्वेश्चन बिकॉज द क्वेश्चन इज k डिवाइड बाय s plus 6. So here now in this question there is x plus 6, s plus 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है. then s square plus 4s plus 13, there is any quadratic equation. so ये क्वेश्चन आपने बना लिया. आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. बनाने के लिए सबसे पहले आपको कॉपी और पेन लीजिए और ये क्वेश्चन को लिखिए. हो सकता है अभी आप लिख चुके होंगे. नाउ let us start the solution. So solution is in step wise. हम step wise solution solve करेंगे. तो step number 1, कोई भी रूट लोकस हो, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लेंगे. क्वेश्चन लिखने के बाद सबसे पहला स्टेप है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना. बच्चों, सबसे पहले ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है. अब क्वेश्चन आया, question arises in our mind, what is the open loop and closed loop transfer function? So open loop transfer function 1 plus GSHS की it is closed loop. So उस पर ना जाते हुए आप सबसे पहले open loop transfer function निकालना है. तो उसमें आपको देखना है there are two parts, denominator part and numerator part. So this is a numerator part and this is denominator part. In numerator there is no s, that means there is no 0. In denominator there are equation and highest power is 4, that means there are 4 poles. This is s1, this s1 and this s square. So finally it is equation will come s raised to 4. So that means highest power is 4, so there are 4 poles. So determine the open loop poles and 0. Our question is, so s is equal to 0 first, second s plus 6 is equal to 0 second, and s square plus 4s plus 13 is equal to 0. So this is a quadratic equation. लिखते जाइए आप. Then finally ये 3 तो easily 2 तो निकल ही गए. So this is a quadratic equation. Apply the formula of quadratic equation. S is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac divided by 2. Then this is minus 4 plus minus under root of 16 minus 50 divided by 2. अब आप इस तरह से निकालिए, हम दोनों फिर आंसर मैच करेंगे. So finally the roots are minus 2 plus 3j and minus 2 minus 3j because under root of minus 1 is equal to j. हो गया, निकल गया. अब पॉज कर दीजिए वीडियो को पॉज करके जैसे ही आप वीडियो को पॉज करोगे उसके बाद सॉल्यूशन निकालिए. सॉल्यूशन आने के बाद मेरा आंसर देखिए, आपका आंसर देखिए. यदि आपका आंसर मैच कर गया
सो दैट मीन्स हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, आपका फर्स्ट स्टेप याद हो जाएगा। द वन थिंग इन द स्टेप 1 इज दैट concentrate on the complex pole and complex zero. In this question there are no complex zero. सर पहला पॉइंट याद रखिए, कॉम्प्लेक्स जीरो बिल्कुल नहीं है। जैसे ही कॉम्प्लेक्स जीरो नहीं रहेगा आपका एक काम कम हो गया। वो क्या काम है? नो एंगल ऑफ अराइवल। सो एंगल ऑफ अराइवल इज एन ए मीन्स नॉट एप्लीकेबल। एक काम आपका बच गया कि अराइवल निकालने की जरूरत नहीं है। देन कॉन्सेंट्रेट ऑन द कॉम्प्लेक्स पोल्स। अब इसमें कॉम्प्लेक्स पोल है, यदि कॉम्प्लेक्स पोल नहीं रहता तो आपका एक और काम बच जाता। वो कार्य है एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना। बट इस क्वेश्चन में है -2 + 3j 1 और -2 - 3j 2। देर आर 2 कॉम्प्लेक्स पोल, दैट मीन्स देर आर 2 एंगल ऑफ डिपार्चर। So remember, the complex zero is related to the angle of arrival and complex zero is related to the angle of arrival. Complex poles is related to the angle of departure. ये दिमाग में बिठा लीजिए। कॉम्प्लेक्स पोल्स रहेगा एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना, कॉम्प्लेक्स जीरो रहेगा एंगल ऑफ अराइवल निकालना। चलिए फर्स्ट स्टेप हो गया सभी का। अब सेकेंड स्टेप में आते हैं। द रूट लोकस इज स्टार्टिंग फ्रॉम, कि कहाँ से रूट लोकस स्टार्ट होगा कहाँ खत्म होगा। दैट मीन्स रूट लोकस इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओपन लूप पोल्स। सो देर आर 4 पोल्स, 0, -6, -2 + 3j, -2 - 3j हो, और k = 0। यहाँ से रूट लोकस स्टार्ट होंगे। तो अभी देखो एंगल ऑफ डिपार्चर निकालोगे, दैट मीन्स एंगल ऑफ डिपार्चर निकालेंगे तो -2 + 3j, -2 - 3j, इसमें आपको निकलेगा एंगल ऑफ डिपार्चर। तो यहाँ से तो स्टार्ट हो ही रहा है रूट लोकस। इन केस ऑफ 0 - 6 इट इज़ पॉसिबिलिटी टू स्टार्ट द रूट लोकस 0 - 6 या फिर k = 0। Then open loop and then root locus terminated on open loop 0। अब तेरा ओपन लूप 0 कितने नहीं है, सो नॉट एप्लीकेबल। 0 में टर्मिनेट नहीं होगा तो कहाँ होगा? सो इट इज k = -infinity। नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्रांच। Formula for number of branch, n = p when p is greater than z. What is the p? Number of poles, only number of poles, not the value of poles. Z is number of 0. So here in this question number of 0 is 0, number of pole is 4. So number of poles is greater than number of 0 because 0 is 0, poles is 4. So finally the number of branch is equal to 4. Next step is existence of root locus on real axis. That means कि आपका root locus existence on real axis, also called as existence on real axis. What is the existence? The existence of the root locus on a section of real axis is confirmed if the sum of the open loop poles and zeros to the right of the section is odd. शायद समझ नहीं आया होगा। मैं आपको एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस बताता हूँ कि रूट लोकस कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। सो सबसे पहले फॉर दिस स्टेप नंबर 4, हाउ टू सॉल्व द स्टेप नंबर 4? फर्स्ट ड्रॉ द एस प्लेन। द नेम ऑफ दिस प्लेन इज एस प्लेन। ड्रॉ कर लिया, देन नॉमेनक्लेचर दीजिए
दिस इज जे ओमेगा, और ये हो गया रियल एक्सिस सिग्मा। इंडिकेट दिस -1, -2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. This axis is j omega axis. It is called as a imaginary axis. This is the real axis. Real in positive side, real in negative side. Similarly, imaginary in negative side. Indicate the number of poles and 0. 0, 0 hai, so no problem. Then concentrate on the poles. The first pole is S1 is equal to 0. So ये हो गया S1. So it is denoted by cross. Okay, there is no problem. Okay. Second is -6. So ये हो गया -6. Sorry, this is the -6. -6 S2. Then -2 plus 3j, -2 minus 3j, 1, 2, 1, 2, 3. This point is -2 plus 3j. S3. This point is -2 minus 3j. S4. Okay. Then existence of root locus on real axis. देखिए कैसे करना है. सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से देखिए राइट हैंड साइड से की तरफ. ठीक है. तो हम कहाँ से देख रहे हैं? -इन्फिनिटी से देख रहे हैं. इन्फिनिटी से देखो. देखने के बाद इन्फिनिटी से देख रहे हैं कितना पोल दिख रहा है? नंबर ऑफ पोल्स एंड 0. कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ पोल्स और 0 कितना है? तो 0 तो है ही नहीं. तो पोल्स का देखो, ये एक दिख रहा, ये दूसरा दिख रहा है, तीसरा और चौथा. सो दैट मीन्स देर आर 4 पोल्स. सो 4 इज इवन. इवन है तो वहाँ पर रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा. दैट मीन्स -इन्फिनिटी टू दिस -6, यहाँ रूट लोकस डज नॉट एग्जिस्ट. तो मैंने क्रॉस कर दिया. ओके, इस तरह से क्रॉस कर दूंगा. ठीक है, कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा. अब आप चलते चलते कहाँ तक आ गए? -6 तक. अब -6 ढक गया, उसके ऊपर खड़े हो गए ना -6 पे. अब देखो कितने दिख रहे हैं पोल्स? द नंबर ऑफ पोल्स इज 1, 2, 3. 0 तो 0 है, 0 रहने से उसको भी. तो ये 3 दिख रहे हैं. तो 3 नंबर इज इवन और ऑड. सो इट इज ऑड. सो ऑड है, दैट मीन्स रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा. कहाँ से करेगा? -S6 से लेके जहाँ तक आप नेक्स्ट स्टेप तो अपने यहाँ तक गए तो इधर एग्जिस्ट करेगा. कहाँ तक करेगा देखते हैं. फिर हम चलते गए, फिर ये मिलेगा. दिस इज सिमेट्री पोल्स, है ना. तो आपको जो है रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा -6 to -2. -6 to -2 यहाँ पर रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा. तो इसको डैश कर दिए. अब आ गए चलते चलते किस पे खड़े हो गए? -2 पे खड़े हो गए रियल एक्सिस में. -2 पे खड़े हो गए तो ये दोनों ढक गया. ओके. अब फिर देखो कहाँ देखना है? राइट हैंड साइड ही देखना है. कितने दिख रहे हैं? सिर्फ एक दिख रहा है. 1. नंबर ऑफ पोल्स एंड 0 इज 1. सो इट इज ऑड नंबर. दैट मीन्स योर रूट लोकस एग्जिस्ट फ्रॉम -2 to 0. यहाँ भी एग्जिस्ट करेगा. तो आपका मतलब है -6 से अब 0 तक एग्जिस्ट कर रहा है. फिर हम आगे बढ़े, 0 पे आ गए. अब 0 पे आ गए, देखे प्लस इन्फिनिटी पे तो कितना है? तो नंबर ऑफ पोल्स एंड 0 इज 0. 0 इज इवन नंबर. तो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा. So what is the final conclusion? The final conclusion is that the existence of root locus is between -6 to 0 in this question. Okay, -6 to 0. यहीं से रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा. अब एग्जिस्ट करेगा का क्या मतलब है? कि रूट लोकस यहाँ से कहीं से जाएगा. ओके. अब आपने निकाल दिया था ब्रेक अवे पॉइंट. अब ब्रेक अवे पॉइंट जैसे निकालेंगे, देन वी वेरीफाई द आवर
existence of root locus with breakaway point. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेप नंबर 5. आप लिखते जाइए कॉपी में, पॉज कर दीजिए वीडियो. स्टेप नंबर 5, क्या नाम है स्टेप नंबर 5 का? ब्रेक अवे पॉइंट, BAP, बाप. So, हमने इसको शॉर्ट नाम दिया बाप, जो आपको याद रहेगा. What is the formula for breakaway point? dk by ds is equal to 0. Always remember, BAP dk by ds is equal to 0. Okay. So first determine the characteristics equation. What is the formula for characteristics equation? है ना, 1 plus GSHS is equal to 0. This is a characteristics equation. Then the characteristic 1 plus, अब लिखो GSHS, put the value of GSHS. So K divided by S plus 6, S square plus 4S plus 13 is equal to 0. Then S plus 6, S square plus 4S plus 13 plus K is equal to 0. So finally we obtain the one equation, S square. इसके लिए मैं फिर बता रहा हूँ, आप पहले बना लीजिए और उसके बाद मैच करिए. ये यदि आपका आ गया इक्वेशन, अभी तक का स्टेप आपका सही है. नेक्स्ट, K इज इक्वल टू माइनस एस टू 4 माइनस, उसको अपन लेफ्ट को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किए. K निकालना है आपको. K, वाई वी डिटरमाइन द K? बिकॉज dk by ds इज इक्वल टू 0 ना. सो K, फिर जैसे ही K निकल गया, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ K विथ रिस्पेक्ट टू S इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू S. अब K के बदले क्या है? के बदले इतना बड़ा इक्वेशन है, इसका डिफरेंशिएशन लो. सो फाइनली वी ऑब्टेन 4s क्यूब प्लस 30s स्क्वायर प्लस 74s प्लस 70. अब ये ऑब्टेन द प्लस, है ना, इधर ये माइनस था स्टेप में, इज इक्वल टू 0 था. अब 0 को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इस स्टेप को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फाइनली आएगा. सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन. Try error method, determine the, because s cube means there are 3 value of s. This is the s cube, that means there are 3 value of s. So there are various option. Use the try error method, put the value of s and it is 0. Second method is calculator, scientific calculator. Nowadays the scientific calculator having this option. Third, in Google, so type on Google or search on the Google the cubic equation calculator. तो उसमें आएगा a s क्यूब प्लस b s स्क्वायर प्लस ऐसा d इज इक्वल टू 0. a b c d का वैल्यू रख दो, ये हो गया a 4 b, आपको तुरंत वैल्यू मिलेंगे. सो देर आर 3 वैल्यूज बिकॉज s क्यूब हाइएस्ट पावर इज 3 वैल्यूज. So S1 is equal to minus 4.2, S2 is equal to imaginary and S3 is imaginary. So हम किसकी बात कर रहे हैं? कि ब्रेक अवे पॉइंट कि रियल एक्सिस में कहाँ कट होगा. अब इसमें माइनस 4.2 आया, एग्जिस्टेंस देखो तो एग्जिस्टेंस यहाँ -6 है और ये 4.2 अंदर आ रहा. तो इसका मतलब ये पॉइंट वैलिड है आपका. सो दिस पॉइंट इज वैलिड. This 2 point is invalid due to the imaginary. अब एक चीज़ याद रखिए, अगर मान लो इमेजिनरी नहीं आता, 3 पॉइंट आते, S1 इज इक्वल टू माइनस 4.2, S2 बराबर -7, S3 बराबर +3. तो -7 कहाँ जा रहा? -6 के बाद यहाँ पर हमने क्या निकाला? रूट लोग एग्जिस्ट नहीं करा. सो दैट -7 पॉइंट इज इनवैलिड. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इफ सपोज S इज इक्वल टू 3 + 3 एग्जिस्ट हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा. So that means this is also invalid point. So out of 3 there is only one valid. Okay, this is nothing but example, but in this question there are 2 imaginary roots. So imaginary roots S2 and S3. So this is invalid. This 2 roots are invalid. There is no problem. Only one point S1 is equal to minus 4.2 is valid breakaway point. So first question in the first question is determine the breakaway point path. So it is nothing but minus 4.2. The next step is angle of asymptotes. The theta k is equal to 2k plus 180 divided by p minus z. This is the formula for determining the angle of asymptotes.
So here concentrate on the k. Write down the formula of k in your copy. So k is equal to 0, 1, 2 and so on. What is the last point? Last point is p minus z minus 1 is the last point. So dear student, always calculate the last point. First calculate the last point. What is the last point? Number of poles 4, number of 0, 0, then minus 1, finally 3. And write down in the descending order. So 3, 2, 1, 0. So k is equal to 0, 1, 2, 3. So k is equal to 0, 1, 2, 3. So select the value of k. First 0, then 1, then 2, then 3. So k is equal to 0. So theta 0 is equal to 2 into 0, 0 plus 1 into 180 divided by 4. So k is equal to 1. फिर से कह रहा हूँ, कॉपी लीजिए, निकालिए, इसको पॉज करिए, आंसर मैच करिए. यदि आपको आ गया तो आपको स्टेप नंबर 6 आ गया. सो स्टेप नंबर 6, k is equal to 0. So theta 0 is equal to 0 plus 1, it is 45 degree. When k is equal to 1, so theta 1, तो यहाँ पे रखना 1, थोड़ा भी गड़बड़ नहीं करना, 1. उसके बाद 2 into 1, 2 plus 1 finally. So k is equal to 1, then theta 1 is equal to 2 into 1, 2 plus 1 into 180 divided by 4. So finally 135. Next theta k is equal to 2. So theta 2 is equal to 225. Then k is equal to 3. So theta 3 is equal to 315. So there are 4 angle of asymptotes. Already we determined the centroid, the intersection point of asymptotes on real axis. अभी हमने क्या निकाला, उस पॉइंट पे एंगल, तो उसमें 4 एंगल निकालना है प्रोटेक्टर से और उसको ड्रॉ कर देना है एसिम्पटोट्स को. याद रखो 4H पेंसिल का यूज़ करना है, एसिम्पटोट्स हल्के से निकाल लेना है. 45 डिग्री, 135, 225 और 315. दिस इज अ 315. ओके, 315. Then next step is, it is very interesting step, centroid. Centroid, formula for centroid is summation of p, summation of zeros. So there is some different between p and summation of p. Summation of p means सब poles को जोड़ दो, and p means number of poles. The summation 0, तो 0 है नहीं तो no problem, ये भी 0 हो जाएगा. कैसे? सेंट्रॉइड c ले लो, सिंबल इसका c is equal to 0 plus minus 6, पहला पोल्स, दूसरा ओपन लूप पोल्स, तीसरा -2 plus 3j, चौथा -2 minus 3j, और ये 0 क्या है, नंबर ऑफ 0, 0 ही है. अब देखो ये पोल के बदले आ गया 4, 0. सो फाइनली c is equal to -10/4 is equal to -2.5. वो आपने देखना, देख लिया ना, इसको पॉज करो, ये फॉर्मूला लिखो और खुद निकालो. ये आ गया, दैट मीन्स आपको स्टेप नंबर 7 आ गया. बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हो जाएगा. नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 8. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेप. दिस स्टेप इज दैट to determine the intersection point of root locus on imaginary axis. Step number 8, the value of, अब इसमें value of k निकालना है. Intersection points with imaginary axis, ऐसा भी बोल सकते हो. अगर रूट लोकस वहाँ से गुजरा, अगर आपको पॉइंट मिलेगा इमेजिनरी तो ही गुजरेगा, अदरवाइज नहीं गुजरेगा. पॉइंट ही नहीं मिला, रियल मिल गया तो नहीं गुजरेगा. द वैल्यू ऑफ k आपको देखना है कि द वैल्यू ऑफ k एंड द पॉइंट एट विच द रूट लोकस ब्रांच, आपको समझ रहा है कि नहीं वाली पॉइंट. इसमें हमको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना जो पहले निकाल चुके हैं. इसी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को फिर से आंख मूंद के यहाँ लिख दीजिए. लिखने के बाद क्यों लिखना है सब, द वैल्यू ऑफ k and the point at which the root locus branch
crosses the imaginary axis is determined by applying Routh criterion to the characteristics equation. अब Routh criterion हमने कितने बार पढ़ा है. अब एक पॉइंट याद रखिए कि ये जो है अगर इमेजिनरी आएगा तो ही कटेगा. The roots at the intersection point are imaginary. तो इसको कैसे निकालना है? इसको इस तरह से निकालना है. सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिख लो. अगर रूट लोकस गुजरेगा तो इमेजिनरी एक्सिस वाई एक्सिस जो है ना उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है. सो ऑलरेडी वी डिस्कस्ड एंड आल्सो वी सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑन द आरएच क्राइटेरियन, रूथ हर्विट्ज क्राइटेरियन. सो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिख लिए, फिर इसका रूथ अरे बना लो. रूथ अरे बनाने के बाद इस तरह से फाइनली आपको याद आ गया क्या? If suppose first column having no sign change, that means system is stable. अगर यहाँ साइन चेंज हो रहा है तो सिस्टम अनस्टेबल है. जितने बार चेंज हो रहा है उतना जो है राइट हाफ ऑफ द एस-प्लेन में रूट्स रहेगा. ये सबको आपको मालूम होगा. तो ये निकाल लीजिए. दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. क्या पॉइंट है कि अगर पहला कॉलम पॉजिटिव आ रहा है, अब पॉजिटिव आने के लिए क्या करते हैं? ये जो पॉइंट है ये कभी भी जीरो से बड़ा हो, और बराबर जीरो रखेंगे तो क्या होगा? ये सब जीरो हो जाएगा. ये पूरा जो रो है ये रो जीरो हो जाएगा. अब जैसे ये रो जीरो होगा ऊपर वाले इसको ऑक्सिलरी. आर यू गेटिंग दिस टॉपिक? आर यू गेटिंग दिस टॉपिक? बिकॉज फर्स्ट यू स्टडी अबाउट द आरएच क्राइटेरियन, देन सॉल्व this point. Okay, so 78 minus 0.34 k is greater than 0. So this is a condition of stability. ये स्टेबिलिटी का कंडीशन है, उसमें प्लस होगा तो सब जो है आपका जितना एलिमेंट्स इन द फर्स्ट कॉलम है वो पॉजिटिव रहेगा. तो 78 अगर जीरो करेंगे तो क्या होगा? ये देखो इसका वैल्यू जीरो करेंगे तो ये जीरो करेंगे ना, ये जीरो जीरो जीरो. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन था. हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए इस क्वेश्चन में. इन आरएच क्राइटेरिया में आपको क्या करना है? वो स्टेबल अनस्टेबल निकालना है. सो हियर 78 माइनस 0.34 k इज इक्वल टू 0. सो फाइनली k इज इक्वल टू 229.4 आ रहा. सो व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ k in this row, so this is nothing but a means 1 2 3 4th row of the Routh array. So all elements of 4th row is 0. So when all elements of 4th row is 0, then 3rd row is auxiliary equation. So auxiliary equation बनेगा 29.2 s square plus k is equal to 0. So 29.2 s square प्लस k, पुट द वैल्यू ऑफ k नीचे से निकला अभी रूट अरे से. एंड फाइनली जब उसका रूट लोगे आप तो s इज इक्वल टू निकलेगा. दैट मीन्स दिस हियर इन दिस पॉइंट राइट ऑन हियर 0 प्लस माइनस j 2.98. अब ये जीरो क्या है? रियल है ना ये. इसका मतलब ये इमेजिनरी एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है. Are you getting? So next point is step number 9. So in this question there is no value of step number 9, but for the stepwise solution, so it is also a very important point. Angle of arrival theta a. So there is no complex zeros, no need to determine the angle of arrival, and it is not applicable. Na means applicable. But we know the formula of angle of arrival. What is the formula? Angle of arrival is theta a. A means arrival is equal to 180 minus summation of phi z minus summation of phi p. अब इधर देखिए थोड़ा इंटरचेंज होना है. एंगल ऑफ डिपार्चर में डिपार्चर इज रिलेटेड टू द पोल्स, अराइवल इज रिलेटेड टू ज़ीरो. अराइवल जब आएगा तो ज़ीरो पहले लेंगे, डिपार्चर आएगा तो पोल्स पहले लेंगे. अब इसको इंटरचेंज कर दिया. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ डिपार्चर.
सो हियर अब क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज अ फाइजेट। फाइजेट क्या है? तो फाइजेट क्या है? इट इज, देखो फाइजेट को अच्छे से देख लो। फाइजेट, फाइजेट इज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स सबटेंडेड बाय रिमेनिंग जीरोस। अब ऐसे ही फाइव पी बताना है। सो फाइव पी इज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स subtended by poles. The angle of arrival is tangent to the root locus at the complex zero. Last step is to determine the angle of departure. वैसे ही arrival निकाल सकते हैं यदि complex zeros रहा तो. In this question there is a complex poles. So complex poles is related to the angle of departure, theta d. This d stand for the departure, angle of departure. The formula is angle of departure is equal to 180 minus summation of phi p summation of phi z. तो मैंने पिछली बार आपको बताया था व्हाट इज द phi p and phi z. अब p इसमें पोल्स, z स्टैंड फॉर जीरो, तो उस एंगल ऑफ अराइवल में यहाँ z आता था, यहाँ p आता था. अब इसको देखिए व्हाट इज द समेशन ऑफ p. अब देखिए थीटा डी 180 नो प्रॉब्लम. फाइव पी क्या है? सबसे पहले ड्रॉ द वन एस प्लेन एंड इंडिकेट द पोल्स. इन दिस क्वेश्चन देर आर 4 पोल्स. से एक हो गया आपका जीरो, ये पोल्स है -2 + 3j, -2 -3j. हमको क्या निकालना है? एंगल ऑफ अराइवल. एंगल ऑफ अराइवल कहाँ निकलता है? सिर्फ कॉम्प्लेक्स पोल से. यहाँ से निकलेगा. अब ये ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, आपको नहीं मालूम ना, इसीलिए इसको आप जो है इस तरह से यहाँ से जाएगा तो एंगल निकालना पड़ेगा. तो ये एंगल निकालना है. सो दिस इज कॉल्ड एज ए फाई डी, एंगल ऑफ डिपार्चर. इसको कैसे निकालते हैं? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाई पी? तो सबसे पहले ऐसा कर लिए. करने के बाद आप सबको जोड़ो. किसको किसको जोड़ो? ये है आपका S3. देखो ये S1 था, ये S2 था, ये S3 और ये S4. S3 से S3 में निकालना है आपको. दिस इज द मेन पॉइंट. यहाँ आपको डिपार्चर निकालना है, एंगल ऑफ डिपार्चर. इसको सबसे पहले पूरे पोल से जोड़ो. ये जोड़ दिए, ये दूसरा जोड़ दिए और ये तीसरा जोड़ दिए. देखो तीनों से अपन ने जोड़ दिया है. जोड़ने के बाद राइट हैंड साइड से एंगल निकालना है. ये एंगल निकालना है. इसका वैल्यू लिख लो θ1. ठीक है. ये एंगल निकालना है, इसका वैल्यू लिख लो θ2. एग्जाम्पल, ये एंगल निकालना है, इसको लिख लो θ3. सो देर आर 3 एंगल्स, θ1, θ2, θ3. आर यू गेटिंग? 3 एंगल. अब फार्मूला कैसे बनेगा? अब देखो जीरो नहीं है. सपोज यहाँ एक जीरो रहता, यहाँ जीरो रहता, तो आप क्या करते थे? इसको जोड़ते थे और ये भी एंगल निकालते थे. बट इन दिस क्वेश्चन नहीं है, इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे. फालतू आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. अभी इस क्वेश्चन में देखो इतना हो गया. अब सबसे पहले समेशन ऑफ फाई पी आ जाएगा. समेशन ऑफ फाई पी इज इक्वल टू θ1 + θ2 + θ3. अब θ1 कैसे निकालेंगे? यह है θ1, तो उसके लिए 180 में से इतना माइनस कर दो. 180 माइनस θ1, ये मिल जाएगा. इसका मतलब ये अगर मिल जाता है तो ये मिल जाएगा, क्योंकि θ1 ही नहीं मालूम ना हमको. ये निकाल के करेंगे क्या? हमको ये निकालना है. तो अब ट्रिग्नोमेट्री लगाओ. सो इन दिस ट्रिग्नोमेट्री दिस इज द परपेंडिकुलर. ओके. तो फर्स्ट डिटरमाइन द साइन थीटा. साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा दिस डिवाइड बाय दिस. ओके. दिस डिस्टेंस इज 2. ये कितना है? 3. आपको ये निकालना है, तो पाइथागोरस लगा लो. 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू दिस. ओके. तो 9 + 4
9 plus 4 means 9 plus 4 13 and root of 13. ओके, तो इसमें हम निकालो दिस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? सो 3 बाई 2 इज इक्वल टू tan थीटा, है ना? सिंपली निकल रहा ना, तो वो उसको यहाँ इसको निकालने की जरूरत नहीं है. तो फर्स्ट यू ड्रॉ दिस डायग्राम and determine this angle and this angle and match your answer with my answer. If it is match, there is no problem. That means you understand the point number 10, which is very difficult point because there are a lot of video lectures available on only this point, angle of departure. तो सबसे पहले एंगल ऑफ डिपार्चर का फॉर्मूला देखो. दिस इज द फॉर्मूला, समेशन ऑफ 5p निकालना है. 5p कैसे निकालना है? सबसे पहले जोड़ दिए, जोड़ने के बाद ये वाला एंगल निकालना है. ये एंगल देखो 90 है, नो प्रॉब्लम, ये एंगल निकालना है. इसको हम θ1 एज्यूम किए, इसको θ2, इसको θ3. सो समेशन ऑफ 5p इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2 प्लस θ3. अब ये जो भी वैल्यू आएगा 5p का वो इसमें रखेंगे. 5z कितना है? 0 है. ये माइनस 0 180 जो भी आएगा वो. ओके, थीटा डी इज इक्वल टू 180 माइनस θ1 प्लस θ2 प्लस θ3. माइनस जीरो क्या? समेशन ऑफ एंगल्स फ्रॉम जीरोस, तो 0 है. अब देखो θ1 आया 123.6, θ2 आया 90 डिग्री. देखो θ2 कैसे 90 डिग्री आया था, है ना? उसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं थी, परपेंडिकुलर है. एंड θ3 इज इक्वल टू 36.83. अब देखो देख लो θ3 कैसे आया. ये है आपका -2 प्लस 3j पॉइंट, यहाँ से जोड़े थे, याद आ गया, यहाँ जोड़े थे. अभी θ3 निकालना है. ये -2 है, ये -6 है. अब देखो इसको 6 में से जैसे 2 गया तो 4 बचा, ये 0.4 हो गया. तो ये बेस इज इक्वल टू 4, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3. तो क्या होगा? tan θ3 is equal to 3/4. So θ3 is equal to tan inverse of 3/4. tan inverse of 3/4 निकालोगे तो 36.8 आ रहा. क्या था फॉर्मूला? θd is equal to 180 माइनस θ1 123, θ2 90, θ3 36. इसको माइनस करेंगे तो -70.46 आ रहा. So this -70.46, how to draw the angle of -70.46 from this complex pole? The value of this complex -2 plus 3j. देखो कैसे निकालना है. तो माइनस बोलने से आपको क्या है, देखो कभी भी एंगल अपन किस तरह से लेते हैं, ऐसा लेफ्ट से राइट गिनते हैं. अब इसको आप रखोगे, यहाँ बैठोगे, अब इस साइड देखोगे तो आपको एंगल जो है निकालना होगा. इसको यहाँ से आता +70, माइनस है इसलिए यहाँ. सिमिलरली नीचे, अब दोनों सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस, रियल एक्सिस है. So always determine departure point on one complex pole, other is nothing but a negative of this. So angle of departure on -2 -3j, नेगेटिव साइड में यह आ जाएगा +70.46, +70.46. यहाँ से आपको +70.46 लेना है. तो ये ऐसा निकलेगा. ये पॉइंट भी आप निकालिए, इस तरह से निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से निकलेगा और यहाँ जाएगा. ऐसे ही नेगेटिव है, ऐसे निकलेगा.
getting point. So this is nothing but difference between minus and plus. Okay. तो यहाँ से प्लस आता है इसलिए हम माइनस लेंगे. So first draw the y-axis and x-axis. It is nothing but imaginary and real axis. ये हो गया as plane. So first, how to draw the root locus? We already determined all points. Total there are 10 steps. We solve 10 step and determine the solution. But सब कुछ होने के बाद एस्प्लेन ड्रॉ करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि उस समय तक थक जाता है क्या ड्रॉ करना. सो मैं आपको प्रिंट आउट भी भेज दूंगा. देखो कैसे करना है. सबसे पहले देखो पहला पॉइंट क्या था, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स 0. तो सबसे पहले ओपन लूप पोल्स 0 निकालो. ये देखो ये 1 पोल्स, सेकेंड एंड 6 हो गया. Second step, root locus is starting from open loop poles terminated on k is equal to infinity. Open loop poles क्या क्या है, तो open loop poles एक ये है 0 और एक है 6. ये देखो ये 6 से निकला और इस तरह से चला गया, फिर ये 6 से निकला चला गया. अब ये k बराबर कहाँ गया, इन्फिनिटी. k बराबर कहाँ गया, k बराबर माइनस इन्फिनिटी. ओके, तो ये इस तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम ओपन लूप पोल्स. 6 ओपन लूप पोल्स है, देखो चला गया. ओपन लूप 0. अब देखो k इज इक्वल टू 0 है इस प्लान में, k इज इक्वल टू 0. अब इसमें देखो यहाँ पर हमने निकाला एंगल ऑफ डिपार्चर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पोल है, -2 + 3j. अब इसमें माइनस है इसलिए यहाँ से काउंट किए, प्लस रहता था यहाँ से काउंट किए. उसके बाद अब ये इधर से इसको क्रॉस नहीं कर सकता एसिम्पटोट से, तो यहाँ भी जा नहीं सकता, यहाँ जाएगा. पर ये पॉइंट जो निकला इंटरसेक्शन पॉइंट, इधर उधर है कोई इस तरह से घुमा के आपको यहाँ से निकालना ही पड़ेगा. तो इसीलिए ये ऐसा जाएगा और इस पॉइंट को काटेगा. RH क्राइटेरिया से जो निकाले थे 0.2 समथिंग, और जैसे ऊपर का है इट इज सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस, यहीं से जाएगा. देन ये क्या था आपका. अब आप बोलोगे कि यहाँ से कुछ नहीं कटेगा, क्या नहीं कटेगा, क्यों. बाप निकला था इधर ब्रेक अवे पॉइंट, वो निकला था कितना 4.5 कुछ समथिंग निकला था. तो स्टेप नंबर 3 इज नंबर ऑफ ब्रांच. ये हो गया 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4. फोर्थ स्टेप क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस. यहाँ जो है एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए यहाँ से कटिंग होगा. फिफ्थ इज द ब्रेक अवे पॉइंट. ब्रेक अवे पॉइंट निकलाना रूट लोकस. ब्रेक अवे पॉइंट क्या है कि रूट लोकस रियल एक्सिस का किस पॉइंट से कटेगा, इट इज कॉल्ड एज ए ब्रेक अवे पॉइंट. ब्रेक अवे पॉइंट जो है 4 पॉइंट कुछ निकला था जिसको बाप बोले थे. यहाँ नहीं निकला इसलिए नहीं निकलेगा यहाँ से. यहाँ भी अगर निकलता तो यहाँ से भी रूट लोकस निकलता, नो प्रॉब्लम. यहाँ निकला इसलिए. व्हाट इज द ब्रेक अवे पॉइंट, द रूट लोकस कट द real axis. That point is called as a breakaway point, the point where root locus cut the real axis. Next step is क्या था, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स. तो उसमें 45. तो सबसे पहले सेंट्रॉइड लिखा हो. सेंट्रॉइड निकला था कुछ 2.5, 10/2 ऐसा कुछ निकला था, -2.5. सेंट्रॉइड से यहाँ पे प्रोटेक्टर रखो 45 डिग्री में, 4H पेंसिल से लाइन खींचो, ड्रॉ करो. एक जो है 135 पे, एक जो है आपका कितना आया था जो भी एंगल 300 और एक 315 जो भी आया था उस तरह से एंगल ड्रॉ कर देना. ये भी हो गया. अब हो गया एंगल ऑफ डिपार्चर भी हो गया. अब RH क्राइटेरिया वो था निकला था, RH क्राइटेरिया इस पॉइंट से निकलेगा. तो दिस इज द वन कंप्लीट diagram of root locus. Thank you dear friend.